अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Okay, today's lecture I'm going to start your new topic, chapter number 47, that is sensory receptors, neuronal circuits for processing information. आपको पता है कि हमने सेंसरी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। सेंसरी सिस्टम का क्या मतलब है कि तमाम सेंसेस जो वी कैन फील, हम जो फील कर सकते हैं सेंसेस, लाइक हम टच फील कर सकते हैं, हम पेन फील कर सकते हैं, हम वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। ऑल दीज सेंसेस आर कॉल्ड एज योर सेंसरी information or afferents, which are carried out by sensory roots of the spinal cord, dorsal horn of the spinal cord, through the then through the pathways to the your cerebral cortex. ठीक है? So these are all your sensory information which is being carried out. So कोई भी आपकी सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? अब ये इंफॉर्मेशन जाती कैसे है? इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो जाती है through your receptors. So by the end of your lecture, you should be able to learn what is receptor, what is differential sensitivity of the receptor, what is labeled line principle, what are the different types of sensory receptors, and you can name the types of the receptors which are found in the skin and their relation to the touch, cold, warmth and pain, and what is the important elements of sensory coding. ये जो लास्ट टॉपिक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेंसरी कोडिंग, प्लीज ये आपकी गाइडन में नहीं दिया हुआ। आई एम अगेन रिपीटिंग, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेंसरी कोडिंग गाइडन में नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता होता है, इसलिए आपने सेंसरी कोडिंग को बहुत गौर से सुनना है कि क्या होता है, और इवन इफ यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दीज स्लाइड्स यू कैन टेक, ठीक है? इसको जरूर देखना है। सेंसरी कोडिंग क्या होती है, रिसेप्टर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है रिसेप्टर्स की, उसकी डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर क्या है, दो तीन प्रिंसिपल तुम लोग यहाँ पढ़ोगे आज के लेक्चर में, दैट इज लिपिड लाइन प्रिंसिपल जो कि नर्व फाइबर से रिलेटेड है। देन यू विल स्टडी अबाउट मुलर्स लॉ ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी जो कि रिसेप्टर से रिलेटेड है। देन यू विल स्टडी लॉ ऑफ प्रोजेक्शन जो कि आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। फिर आज आप पढ़ोगे कि कितनी टाइप्स के सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट हैं, और उनका रिलेशन क्या है आपकी डिफरेंट मॉडलिटीज ऑफ सेंसेशन से, लाइक टच, कोल्ड, वार्मथ एंड पेन। और देन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सेंसरी कोडिंग, जो कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी गाइडन में सेंसरी कोडिंग का शायद एक वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन एज सच नहीं दिया हुआ, इसलिए इसकी स्लाइड्स आपने जरूर ले लेनी है, मैं आपको मेंशन कर दूँ। The basic mechanism by which the receptor changes sensory stimuli into a nerve signals that are then conveyed and processed in the central nervous system. And then we will discuss the types of sensory receptors and the stimuli they will detect. There are different types of the receptors which can convert one various form of energy of the environment into the action potential, and that can be detected. These can be differentiated mainly in these 5 forms of the receptors. इसको आप याद रखें, mnemonic cement. Cement means C means chemoreceptors, E means electromagnetic receptors, M mean mechanoreceptors, N mean nociceptors, and T mean thermal receptors. Starting from the mechanoreceptors which will detect वो receptors जो कोई भी mechanical compression या stretching of the receptor of the tissues जो कि adjacent to the receptors है उसको detect करें, उसको आप कहते हैं mechanoreceptors. Then thermoreceptors, changes in the temperature, and some of these receptors can detect cold,
आपको सर्दी का भी पता चलता है, आपको गर्मी का भी पता चलता है. So thermoreceptors name suggesting change in the temperature of some of the receptors are cold receptors, some of these receptors are warm receptors. ये receptors आप डिटेल में पढ़ेंगे अगले chapters. Then nociceptors and nociceptors are pain receptors which detect any physical or chemical damage occurring in the tissues are nociceptors. कोई भी damage जो tissues में होगा जो कि आपकी बॉडी डिटेक्ट करेगी कि हमारी मेरी बॉडी में पेन हो रही है. वो केमिकल डैमेज भी हो सकता है, वो फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, क्रशिंग भी हो सकती है, हीट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ट्रॉमा कर सकती है. देन कोई भी इलेक्ट्रिकल चेंज जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी आईज में प्रेजेंट होते हैं. लाइक रेटिना में रिसेप्टर्स रॉड्स एंड कोन्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं लाइट ऑन द रेटिना ऑफ द आई. So these are the type of receptors which are known as electromagnetic receptors. Receptors होते क्या हैं? ये transducers हैं which convert various forms of energy into connection potential. फिर उनकी types क्या क्या हैं? कीमोरिसेप्टर्स जो कि कोई भी केमिकल चेंज आपकी बॉडी में हो रही है, लाइक आपका माउथ में कोई टेस्ट चेंज कर रहा है, केमिकल कोई स्मेल हो रही है, आप स्मेल कर रहे हो नोज में, वो डिटेक्ट हो रहा है. आर्टीरियल ब्लड में कोई ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स में कोई ऑस्मोलैलिटी में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है. कोई भी जो केमिकल आपका मेकअप ऑफ द बॉडी है, that is going to be changed and that is going to be detected by chemoreceptors which are aortic and carotid bodies. ये आपने सारा सर्कुलेशन में भी प्रीवियस फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एओर्टिक बॉडीज होती हैं, कैरोटिड बॉडीज होती हैं जो कि आपकी ऑस्मोलैलिटी को डिटेक्ट करती हैं, आपकी ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करती हैं. नोज में आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि और ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं जो कि आपकी स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं. माउथ में अभी आप प्रैक्टिकल्स में देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट विद इन द टंग जो कि आपके डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट सेंसेशंस ऑफ द टेस्ट. ठीक हो गया. सो दीज आर अगेन आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दीज रिसेप्टर्स. आपको मैंने एक निमोनिक बताया सी मैट. सी से आप कीमोरिसेप्टर्स, ई से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, एम से आपने मैकेनो रिसेप्टर्स, एन से आपने नोसिसेप्टर्स और टी से आपने थर्मोरिसेप्टर्स. कीमो से आपने केमिकल चेंज इन द बॉडी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, आर्टीरियल ऑक्सीजन चेंज हो रही है, आपकी ऑस्मोलैलिटी चेंज हो रही है, आपकी आर्टीरियल ब्लड जो है उसके ऑक्सीजन लेवल्स चेंज हो रहे हैं, कोई माउथ में जो है वो टेस्ट चेंज हो रहा है, स्मेल टेस्ट चेंज हो रही है. These are the different types of the detected by chemoreceptors. E is electromagnetic. कोई भी लाइट रेडिएशन जो हैं जो कि आपकी आईज पे पड़ेंगी तो चेंज डिटेक्ट होगी आपकी रेटिना से. फिर आपकी नोसिसेप्टर्स हैं जो कि नोसिसेप्टर्स हैं पेन रिसेप्टर्स. पेन रिसेप्टर्स लाइक फ्री नर्व एंडिंग्स जो कि डिटेक्ट करेंगी आपकी कोई भी केमिकल या फिजिकल डैमेज अकरिंग इन द टिश्यूज. देन आपके थर्मोरिसेप्टर्स हैं जो कि चेंज इन द टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और कोल्ड रिसेप्टर सेपरेट हैं और जो आपके वार्म रिसेप्टर्स हैं वो सेपरेट हैं. फिर कोई भी मैकेनिकल कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग ऑफ द टिश्यूज हो जो कि रिसेप्टर्स के साथ प्रेजेंट है या रिसेप्टर्स में इटसेल्फ हो रहा, तो दीज टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर मैकेनोरिसेप्टर्स. फिर हम वन बाय वन इन रिसेप्टर्स को अगेन आई विल शो यू द टेबल व्हिच इज गिवन इन योर गाइड, तो वो आपको दोबारा से बताऊंगी कि क्या क्या टाइप है रिसेप्टर्स. एक्चुअली द सेंसरी सिस्टम जो है वो आपका कैसे डिटेक्ट होता है, वहाँ से आपकी नर्व एंडिंग्स जाती हैं. वो एंडिंग्स कहाँ से जाती है, रिसेप्टर से जाती है. और किसके थ्रू जाती है, एफरेंट डिवीजन के थ्रू. और ये सेंसरी एफरेंट जो है इंफॉर्मेशन लेके जाता है, कॉन्शियसनेस में आपकी इंफॉर्मेशन जाती है और इसको आप कहते हैं सेंसरी एफरेंट्स. उसके बाद आपकी सोमैटिक या आपकी बॉडी सेंसेशन अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी सरफेस लाइक प्रोप्रियोसेप्शन or from the skin or from muscles, joints, skin and inner ear. These are the somatic sensation जो कि आपकी पूरी बॉडी में से कहीं से भी जा सकती है. आपकी स्किन में से जा सकती है, आपके जॉइंट्स में से जा सकती है, आपके मसल्स में से जा सकती है, आपकी पोजीशन सेंस जा सकती है, आपकी जो है वो टेक्टाइल सेंसेशन दैट इज टच सेंसेशन, फाइन टच सेंसेशन या आपके इनर ईयर से, ये तमाम की तमाम सेंसेशंस को आप सोमैटिक सेंसेशन कहते हैं. ये
ये एक आपकी सोमैटिक सेंसेशन है। फिर एक होती है आपकी स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस आपने हमेशा से बचपन से पढ़ा है कि 5 स्पेशल सेंसेस होती हैं, लाइक विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, और जो है आपकी हेयरिंग है, ये तमाम सेंसेशंस जो हैं ये स्पेशल सेंसेशन। सो सेंसरी सिस्टम मेनली डिवाइडेड इनटू स्पेशल सेंसेस एंड सोमैटोसेंसरी sensations. Somatosensory sensations are having this mechanoreceptor somatic sense like tactile and proprioception, and thermoreceptive sense or pain sensation. Somatosensory sensation, which is including your touch, tactile including your ये बार बार वर्ड्स आएंगे आपके, इसलिए आपको गौर से इसको देख लो, अगले चैप्टर्स में भी आएंगे। टेक्टाइल सेंसेशंस क्या होती हैं, लाइक टच है, फाइन टच, क्रूड टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, टिकल एंड इच सेंसेशन। टिकल होती है जो गुदगुदी करना है, इच होती है खारिश सेंसेशन, वाइब्रेशन कि कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, और दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय प्लेसिंग और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक ऑन द mastoid या एनी फ्रंट ऑफ द वर्टेक्स। प्रेशर है, प्रेशर आप अप्लाई करें किसी भी सरफेस ऑफ द बॉडी को, तो दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय योर बॉडी। और फिर टच सेंसेशन है, टच होती है फाइन। फाइन का मतलब है कि आप हल्का सा टच जो है, फाइन लाइक जो पेन के साथ भी अगर हो, तो क्रूड होता है कि जैसे आप बाजू पकड़ लें किसी का, दैट इज क्रूड सेंसेशन। सो दीज आर द tactile, that is touch, vibration, pressure, tickle and its sensation. Then proprioception. Proprioception sensation include sense of position, motion and equilibrium arising, position, motion and equilibrium arising within the body about joint muscle or muscle movements. These are the proprioception. These can be static यानी कि बिल्कुल रुके हुए भी, या काइनेस्थेटिक यानी कि मूवमेंट से मूव करते हुए भी पता चल सकते हैं। सो दीज आर द सोमैटोसेंसरी मैकेनोरिसेप्टर्स, सोमैटिक सेंसेशन, टैक्टाइल एंड प्रोप्रियोसेप्शन। और थर्मोरिसेप्टिव सेंस क्या होती है आपकी, चेंज इन द टेम्परेचर। और पेन क्या होती है, एनी क्रशिंग या कोई भी डैमेज आपकी हो रहा है। अब ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है, रिसेप्टर्स होते हैं आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए, वहाँ से आपकी एफरेंट नर्व एंडिंग्स आती हैं। वो या तो रिसेप्टर एट पेरिफेरल एंडिंग जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। अब वो स्टिमुलस जो है, वो रिसेप्टर्स जो हैं वो बहुत एक्सटर्नल हो सकते हैं या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन जाती है वाया एक्शन पोटेंशियल, दैट इज चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल, and this receptor converts one form of energy into electrical signals, and that is called as transduction. Like if you see this diagram, this is explaining environmental stimulus, like कोई भी stimulus हो सकता है, कोई light हो सकती है, कोई sound हो सकता है, any change in temperature हो सकता है। ये information आपकी through accessory structures and through receptors goes to the in the form of nerve impulses, like train of nerve impulses or over specific nerve pathway या पढ़ोगे pathways कहा जाता है आपके सेंट्रल असेंडिंग पाथवे के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वो आपका परसीव करेगा कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है, किस किस्म की जो है टाइप है एंड इंटेंसिटी ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, और आपकी बॉडी ने उसके रिस्पॉन्ड में कैसे बिहेव करना है। अगर कोई थर्मल है यानी कि वार्म है तो आप इमीडिएटली अपनी बॉडी को वहां से विड्रॉ कर लो। अगर कोई कोल्ड है तो आप अपनी बॉडी को कवर कर लेते हो। अगर बहुत ज्यादा ऊंची आवाज है तो आप अपने आप को उस ऊंची आवाज से जरा दूर ले जाते हो। So these are the sensory information that is sensing a sensation overall. Afferent nerve endings पहले एक stimulus आएगा, stimulus आपकी receptors के through, receptors में information carry करेगा in the form of action potentials or nerve pathway which is going to the central nervous system, and central nervous system will perceive type and intensity of the environmental stimulus. So this स्टिमुलस होता क्या है, कोई भी चेंज जो कि आपकी बॉडी डिटेक्ट करे, अ चेंज विच इज डिटेक्टेबल बाय द बॉडी और अ फैक्टर इन द एनवायरनमेंट
that produces an effective response in a sensory receptor is called a stimulus. अब stimulus क्या करता है? Involves exchange of energy between the environment and the receptors, and it can exist in various form of energy or principal type of the sensation that we can experience, or that one can experience, like pain है, touch है, sight है, heat है, light, sound, chemical, energy और pressure. यानी कि heat, light, sound, chemical energy, pressure, these are actually the sensation a person can perceive is called as different modalities of sensation, and this is going to be detected in the form of stimulus, which is a change which is detected by the body. कि नॉर्मली तो हम बैठे हुए होते हैं, लेकिन अचानक बैठे बैठे हमें एकदम से कोई पेन फील हो, या हमें अचानक एकदम से लाइट हमारी आंखों में पड़ जाए, या हमें कोई आवाज सुनाई दे दे, तो ये तमाम की तमाम डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ सेंसेशंस हैं. ठीक है. सो प्रिंसिपल सेंसरी मोडालिटीज कौन कौन सी हैं? वो हमारी हो सकती हैं प्रिंसिपल मोडालिटी सेंसेशंस आपकी विजन हो सकती है, ये स्पेशल सेंसेस हैं, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, ये आपकी स्पेशल सेंसेस हैं. या फिर आपकी जो सोमैटिक सेंसेशंस हैं लाइक टच, प्रेशर, या फिर आपके कानों के अंदर जो रोटेशनल वेस्टिबुलर अपरेटस हैं वो वेस्टिबुलर अपरेटस डिटेक्ट करेगा. रोटेशनल एंड लीनियर एक्सेलरेशन, टच, प्रेशर इज सोमैटिक सेंसेशन, वार्म, कोल्ड, थर्मोरिसेप्टर्स, पेन बाय फ्री नर्व एंडिंग, जॉइंट पोजीशन एंड मूवमेंट, कौन से रिसेप्टर्स करते हैं ये हम अब आपको बताएंगे. या मसल स्पिंडल, आपकी मसल लेंथ, टेंशन जो एक ऑजी टेंडन डिटेक्ट करता है, आपका ब्लड प्रेशर, आपके एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज डिटेक्ट करती हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर डिटेक्ट होता है, आपका लंग्स जो है वो ज़्यादा ओवर इन्फ्लेट हो जाए तो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो लंग के अंदर प्रेजेंट हैं वो डिटेक्ट करेंगे. फिर आपके जो ब्लड है, हाइपोथैलेमस है, वो टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई. जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर्स डिटेक्ट करेंगे, आपका CSF की pH जो है वो भी डिटेक्ट हो जाएगी, और प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी डिटेक्ट हो सकता है ऑस्मोरिसेप्टर्स के थ्रू, और आर्टीरियो वेनस ब्लड ग्लूकोज डिफरेंस भी डिटेक्ट हो सकता है. मीनिंग कि आपकी डिफरेंट मॉडलिटीज ऑफ सेंसेशंस जो हैं these are, or these can be detected in the form of stimulus, that is a change that can be detected by a body, and these are the principal sensory modalities. ये जितनी लिस्ट दी हुई है ये सारी sensory modalities हैं. ठीक है. लाइक अ स्टिमुलस इज अप्लाइड टू अ रिसेप्टर, ये एक रिसेप्टर दिखाया हुआ है जिसमें एक स्टिमुलस आया, उसने स्टिमुलेट किया, उसकी शक्ल जो है बदल गई, डिफ्लेक्शन ऑफ रिसेप्टर, वो अपनी जगह से हिल गया, रिसेप्टर दूसरी तरफ चला गया. फिर क्या हुआ? फिर जो है वो उसमें जो है वो आपके लोकल एक्साइटेटरी चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस, उसने आपकी लोकल एक्साइटेटरी करंट्स भेजा. फिर आपका क्या हुआ कि इनिशिएशन रीजन है, यहाँ सपोज नोड ऑफ फ्रेंडवियर है, और वहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल जाएगी. पहले आपकी चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी, एक थ्रेशोल्ड लेवल तक जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी जब स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्टिमुलस जो है वो चेंज कर दिया, और उसने रिसेप्टर पोटेंशियल को चेंज कर दिया इनटू ना एक्शन पोटेंशियल. ये भी हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिसेप्टर पोटेंशियल और कैसे उसने चेंज प्रोड्यूस की, कैसे जो है आगे चेंज हुई और कैसे वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ. Basically, this is the mechanism how the change in membrane potential of the receptor takes place. ठीक हो गया. अब sensory receptors की अगर if you are asked to define the receptors, these are the transducer, क्योंकि ट्रांसडक्शन हो रही है ना नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, तो these are the transducer that convert various energy forms in the environment into APs, meaning action potentials. These are the transducers that convert various form of energy in the environment into action potential and detected by your somatosensory cortex.
These receptors are actually the sense organs which can be present along with non-neuronal cells, or it can be a part of neuron or a specialized cell. यानी सेंसरी रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन या तो अकेला पड़ा हुआ होगा किसी नॉन न्यूरोनल सेल के साथ, या फिर ये किसी नर्व का पार्ट होगा, वहां से इंफॉर्मेशन आपकी पर्टिकुलर अडेप्ट होगी, रिस्पॉन्ड टू वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी at much lower threshold than other receptors would respond to energy. Adequate stimulus should be required to convert particular form of energy that the receptor is more sensitive to. Meaning कि इतनी एनर्जी चाहिए होगी कि वो उसमें चेंज प्रोड्यूस कर सके, उसकी एनर्जी को वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। सपोज कि अगर लाइट आपकी बिल्कुल लाइट से कम सी लाइट पड़ेगी तो आपकी रेटिना जो है उसमें जो रॉड्स एंड कोन्स पड़े हुए वो इतने स्टिमुलेट नहीं होंगे। सिमिलरली हल्की सी आवाज आपको sometimes नहीं भी सुनाई देती। तो adequate stimulus should be required to convert particular form of energy that the receptor is more sensitive to. ठीक हो गया? So this is important point. Each type of receptor is highly sensitive to only one type of the stimuli for which it is designed, and yet is almost unresponsive या non-responsive to other sensory stimuli. इसका क्या मतलब है? This is actually the property of receptor, that is differential sensitivity of the receptor. Very, very important property of the receptor. Each type of receptor is sensitive, highly sensitive to particular one type of the stimuli for which it is designed, and yet is almost unresponsive to other type of the sensory stimuli, like rods of the cones of the eyes. They are highly sensitive to light. लेकिन अगर आप इनको आप आँख को बहुत जोर से भी दबाएंगे तो पेन तो फील हो जाएगी, लेकिन जो है लाइट नहीं फील होगी। इसी तरह जो आपके अगर आप केमिकल चेंज को आप प्रोड्यूस करोगे तो रॉड्स एंड कोन्स लाइट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, बल्कि सिर्फ आपकी केमिकल चेंज हो रही है। सिमिलरली हाइपोथैलेमस में जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई हैं, they can detect the changes in the osmolality of the body fluids but non-responsive to sound of the any sound. अगर कोई बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस हो रही है तो आपके जो ऑस्मोरिसेप्टर्स जो आपके ब्रेन में पड़े हुए हैं, ब्रेन स्टेम में पड़े हुए हैं, वो कोई साउंड को तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो सिर्फ जो चेंज इन ऑस्मोलैरिटी होगी उसी को रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी तरह रॉड्स एंड कोन्स हैं जो आई के, वो अगर बहुत ज्यादा भी हम आंख को दबा देंगे तो लाइट नहीं नजर आएगी, उसमें पेन फीलिंग हो जाएगी क्योंकि पेन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई प्रेशर स्टिमुलाई हम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं या कर रहे हैं तो पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो खाली हल्का सा प्रेशर देने से स्टिमुलाई नहीं होंगे जब तक कि वहाँ कोई डैमेज नहीं हो रहा, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रही, कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रही। So this is important कि each type of receptor is specifically designed for one type of the stimuli which is designed and is almost non-responsive to other sensory stimuli. कि एक जो चीज़ है खास स्टिमुलस के लिए वो रिस्पॉन्ड होगा, लाइक पेन रिसेप्टर्स हैं वो पेन के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, रॉड्स और कोन्स हैं वो लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं या सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस है तो वो ऑस्मोलैरिटी चेंज को रिस्पॉन्ड करेगा, साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या पेन रिसेप्टर हैं वो टच को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। मतलब ये कि हर रिसेप्टर जो है वो उसकी डिफरेंशियल सेंसिटिविटी है, रिसेप्टर्स की डिफरेंशियल सेंसिटिविटी प्रेजेंट है। इसी तरह जो तमाम डिफरेंट टाइप ऑफ की सेंसेशंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, principal type of the sensation that we can experience like pain, touch, sight, sound and so forth is called as different modality of sensation, and each nerve fiber is specificity of the nerve fibers for transmitting only one modality of the sensation is called the labeled line principle। कि जो nerve fibers हैं वो अगर पेन फाइबर्स के स्टिमुलेट होंगे तो पेन स्टिमुलेट होगी, ये सिर्फ इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं। एक तो रिसेप्टर्स भी डिफरेंशियल सेंसिटिव है, नर्व फाइबर्स भी स्पेसिफिक है। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, योर लेबल्ड लाइन
प्रिंसिपल. दिस इज फॉर nerve fiber. Nerve fiber के लिए होता है आपका labeled line principle, that is the specificity of the nerve fiber for transmitting only one modality of the sensation is called the label. The specificity of the nerve fiber for transmitting only one modality of sensation is called the labeled line principle. कौन सी modality of sensations हैं? These are the pain, these are the touch, these are the sight, sound and so forth. कोई भी मॉडलिटी ऑफ सेंसेशन है वो सिर्फ वो स्पेसिफिक नर्व फाइबर करेंगे. यानी ये नहीं है कि अगर आप टच के नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आप जो हैं वो पेन ट्रांसमिट करें, या अगर आप साउंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आप साइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल. बाद में भी आएगा. अब उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर नर्व ट्रैक्ट जो है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाके टर्मिनेट होता है, और जो भी टाइप ऑफ सेंसेशन फेल्ट होगी दैट व्हेन अ फाइबर, वो स्पेसिफिक नर्व फाइबर जो उसके लिए डिटरमिन्ड है वो स्टिमुलेट होगा, तो is determined by the point in the nervous system to which the nerve fiber leads. यानी कि specific areas हैं आपके somatosensory cortex में. Like if a pain fiber is stimulated, the person perceives pain regardless of what type of the stimuli excites the fiber. The stimulus can be electricity, it can be overheating of the fiber, crushing of the fiber, or this can be damage to the tissue. यानी कि अगर फाइबर को क्रश कर दिया है, कोई ओवर हीट कर दिया है, या उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी से स्टिमुलेट हुआ है, तो पर्सन तमाम केसेस में परसीव पेन, यानी कि पेन नर्व फाइबर्स भी स्टिमुलेट हुए. उसके बाद ऊपर जाके सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का जो एरिया पेन को डिटेक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ पेन डिटेक्ट करेगा विच एवर द स्टिमुलस इज प्रेजेंट. लाइकवाइज अगर कोई टच कर रहा है, टच के नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो रहे हैं, और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का एरिया जो स्पेसिफिक है फॉर योर टच सेंसेशन, तो दिस कैन बी द टच फीलिंग. सिमिलरली लाइट पड़ेगी तो रेटिना रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे, और जो आपका जो एरिया, जो ऑप्टिक एरिया है वो डिटेक्ट करेगा लाइट को. ठीक है. अब दिस इज अगेन द रेपिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स. अगेन सीमेंट हमने क्या कहा था? कीमो रिसेप्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एंड मैकेनो रिसेप्टर्स. वन बाय वन हम इसकी डिटेल करेंगे. अब इसी तरह ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है. जो स्किन के अंदर टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो या एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, डर्मिस में प्रेजेंट है, या हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है. इनकी कई टाइप्स हैं, लाइक मर्कज डिस्क है, हेयर फॉलिकल है, फ्री नर्व एंडिंग फॉर पेन, रुफिनस एंडिंग फॉर जॉइंट मूवमेंट, वीजनर्स फॉर डिफरेंट टच, पसीनियन. These are the different types of the receptors which we will discuss one by one. अब लोकेशन कहाँ होती है रिसेप्टर्स की? या तो ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होगी, डर्मिस और एपिडर्मिस में, जिसको कि आप कहते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, या फिर मसल स्पिंडल है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ द मसल स्पिंडल्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन द मसल्स, और कंटेन मैकेनोरिसेप्टर्स दैट कैन डिटेक्ट स्ट्रेचिंग द मसल. कि जब भी मसल स्ट्रेच करेगा तो उसको डिटेक्ट करेगा आपका मसल स्पिंडल, या फिर टेंशन है जो कि डिटेक्ट करेगी गोल्जी टेंडन ऑर्गन. In receptors key, this is not given, this table is not given in your guidance, so you can take a picture. This can be another classification of receptors, that is non-encapsulated receptors or encapsulated receptors. जो non-encapsulated receptors हैं, these can be divided into free nerve endings, Meissner's disc and hair follicles. ये ऐसे MCQs आ जाते हैं, इसको इसी तरह आप याद कर लें. ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, कॉर्निया में, गट, डर्मिस, लिगामेंट्स, जॉइंट कैप्सूल, बोन, डेंटल पल्प, इन तमाम में ये, और ज़्यादातर डिटेक्ट करते हैं पेन को. फास्ट पेन को भी डिटेक्ट करते हैं, स्लो पेन को भी करते हैं, क्रूड टच को भी डिटेक्ट करते हैं, प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं कि नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है. रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स हैं, वो क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि रैपिड अडेप्टिंग क्या होते हैं. मैकेनोरिसेप्टर्स की टाइप है फ्री नर्व एंडिंग्स. देन मर्कज डिस्क. Merkers discs are present in hairless skin, and this is another type of mechanoreceptors, and this can detect the touch. This is slow type of receptors.
Hair follicle receptors are present in the hairy skin. Another type of mechanoreceptors can detect the touch and कोई भी कीड़ा रेंग रहा हो बॉडी पर तो आपके हेयर्स को पता चल जाता है. Rapid type of your receptors, rapidly adapting. Then encapsulated वो आपके थे non encapsulated यानी इसके इर्द गिर्द कोई आपके कैप्सूल नहीं था. जबकि अगर आपकी कैप्सुलेटेड एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स की हैं तो स्पेसिफिकली जो मोस्ट रैपिडली अडेप्टिंग है वो पसीनियन है, फिर उसके बाद मीजनर्स आता है, रुफिनिस है, फिर ये मस्कुलर जंक्शन में मसल स्पिंडल्स आती हैं जो कि स्केलेटल मसल्स में मोस्टली प्रेजेंट हैं, जो कि स्ट्रेच डिटेक्ट करती हैं. फास्ट एक्टिंग जो रैपिडली एक्टिंग जो है उसको रिसेप्टर्स कहते हैं. फिर रुफिनस आपकी डर्मिस ऑफ द हेयरी स्किन में प्रेजेंट है. हेयरलेस स्किन में क्या था आपका मर्कल्स डिस्क थी. जबकि जो हेयरी स्किन में क्या है, हेयरलेस में मर्कल्स है, हेयरी में रुफिनस है. स्ट्रेच है, स्लो रिसेप्टर्स हैं, वाइब्रेशन कौन डिटेक्ट करता है, रैपिड वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है पसीनियन कार्पसल, डर्मिस में, लिगामेंट्स में, पेरिटोनियम में रैपिडली डिटेक्टिंग है. फिर आपका डर्मिस ऑफ द पेपल ऑफ द स्किन ऑफ द पाम एंड सोल ऑफ द फुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मीजनर्स और ये आपका टच को डिटेक्ट करते हैं, मकैनो रिसेप्टर. ठीक हो गया. रेपिटेटिव ये एक दो आप स्लाइड्स की पिक्चर ले लें. ये आपकी डाइटन में नहीं है. कैप्सुलेटेड एंड एनकैप्सुलेटेड, नॉन एनकैप्सुलेटेड और एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स. ये डायग्राम, ये जो है टेबल, ये आपको डाइटन में दिया हुआ है. अगेन अगर आप देखें, कीमो रिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट, स्मेल, ऑक्सीजन, ऑस्मोलैरिटी, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड चेंज. हाइपोथैलेमस में, मेडुला में, optic nuclei in the hypothalamus is going to detect osmolality. Arterial oxygen is going to be detected by aortic and carotid bodies in the aorta, arch of aorta, and in the your bifurcation of the carotid artery. And smell is detected by receptors of the olfactory epithelium. Taste is going to be detected by receptors of the taste buds. These are the chemical change. In any chemical change can be detected by your chemoreceptors. Then any electromagnetic receptors which is going to detect the vision, यानी कि rods and bones आपकी light को detect करते हैं. Nociceptors pain को detect करते हैं. ये बहुत ज़्यादा MCQ आ जाता होता है कि pain can be detected by which type of receptors. So remember always, free nerve ending, slow pain or fast pain is going to be detected by your free nerve endings. ठीक हो गया. उसके बाद अब आपका आ जाता है mechanoreceptors, जो आपकी स्किन टैक्टाइल सेंसिटिविटी है, लाइक योर फ्री नर्व एंडिंग्स पेन को डिटेक्ट करी है, साथ आपके टच को भी डिटेक्ट कर देते हैं. और मर्कल्स डिस्क हैं जो कि आपकी नॉन हेयरी पार्ट में प्रेजेंट था. प्रे एंडिंग्स, रुफिनेस, रीजनर्स, क्रॉसेस, कार्पसेस, हेयर एंड ऑर्गन, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स, ये तमाम के तमाम आपके डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको स्पेसिफिकली स्किन टैक्टाइल सेंसिटिविटी को था. रुफिनेस एंडिंग्स जो होती हैं ये ज़्यादातर जॉइंट मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं, जॉइंट मूवमेंट्स को डिटेक्ट करती हैं. चेंज इन द मसल स्ट्रेच में मसल स्पिंडल्स हैं और टेंशन डिटेक्ट गोल्जी टेंडन ऑर्गन को. ये जब आप मोटर सिस्टम पढ़ोगे तब आप इसकी डिटेल्स पढ़ोगे कि ये रिसेप्टर्स हैं, लेकिन ये वहाँ ज़्यादा आपके डिटेल में दिया है. हियरिंग इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय कॉक्लिया, कॉक्लियल रिसेप्टर्स हैं. इक्विलिब्रियम वेस्टिबुलर एपरेटस जो कि आपके ईयर में प्रेजेंट है. आर्टेरियल प्रेशर, बैरोरिसेप्टर्स ऑफ कैरोटिड एंड आयोर्टा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आपने. थर्मो रिसेप्टर्स के कोल्ड रिसेप्टर्स भी हैं और वार्म रिसेप्टर्स भी हैं. रिमेंबर, कोल्ड रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं बॉडी में, इसलिए कोल्ड ज़्यादा डिटेक्ट होती है एज कम्पेयर टू वार्म रिसेप्टर्स. ठीक हो गया. इसको अब आपने याद कर लेना है टेबल को अच्छी तरह, बिकॉज यू कैन कम अक्रॉस एनी MCQ रिगार्डिंग दिस टेबल. इसमें से कहीं से भी कुछ दे सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपने बार बार पढ़ी हुई हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, so it's not tough to remember the things except this mechanoreceptors. इनको आपने लर्न करना है. थर्मो वेरी इजी, कोल्ड एंड वार्म रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, फ्री नर्व एंडिंग वेरी इजी. Electromagnetic in special senses you will learn chemoreceptors who have
you will study again in your special senses, taste, smell or osmolality. You have already done in kidney, रेस्पिरेशन में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपने ये पढ़ लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड. So this is very easy to remember the things. घबराना नहीं होता टेबल को देख के, इसको गौर से रीड करना होता है और इसी में से एमसीक्यूज आ जाते होते हैं यूएचएस में. ये इसकी डिटेल्स पिक्चर्स हैं. फ्री नर्व एंडिंग्स किस तरह की है, एक्सपैंडेड टिप रिसेप्टर्स कैसा है, टेक्टाइल कैसे हैं, क्रॉसिस कॉर्पिसल, मीजनर्स, पिसीनियन, रूफिनिस एंडिंग, गोल्जी टेंडन, मसल स्पिंडल, several types of somatic sensory nerve endings. पिक्चर्स दी हैं. अब आपको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स, दैट इज डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स, देयर सेंसरी कोडिंग क्या होती है, लॉ ऑफ नर्व प्रोजेक्शन क्या है, लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज क्या है, कैसे जो है स्टिमुलस स्ट्रेंथ जो है उसको आप जज करते हो. What is sensory coding? This is the point which I have mentioned you in the beginning of lecture that this is not given in your guidance, but the very favorite question of your examiners कि what is coding? What is sensory coding? Converting इसकी please picture ले लो. Converting a sensory receptor stimulus to a recognizable sensation is termed as sensory coding. That is converting a receptor stimulus to a recognizable sensation. यानी कि रिसेप्टर जो है उसका जो स्टिमुलस है उसको आप किसी खास सेंसेशन में जब कन्वर्ट करते हो तो उसको दैट इज कॉल्ड एज सेंसरी कोडिंग. दे आर गोइंग टू हैव 4 टाइप्स ऑफ important sensory system code for 4 elementary attributes of a stimulus. What are these? Modality, location, intensity and duration. Modality means कि different type of modalities or stimulus are present. Location means where they are located. Intensity means कि कितनी intensity के साथ stimulus apply किया गया है, कितनी power के साथ. Duration का क्या मतलब है? How much duration, कितनी duration के लिए इसको apply किया गया. One by one. This is the table which has been taken from some book, I think from Sherwood. What is the type of the stimulus or stimulus modality? That is distinguished by the type of receptor कि कौन सा receptor जो है वो activate हुआ है and कौन सा specific pathway है over which this information is transmitted to particular area of the cerebral cortex. Distinguished by the type of receptor activated and specific pathway over which this information is transmitted to a particular area of cerebral cortex. से कौन सा receptor stimulate हुआ है और वो stimulate होके कौन से particular area of the cerebral cortex को जाके stimulate कर रहा है. Location of the stimulus कि activated receptor field कितना जो है वो distinguish किया जा सकता है. Location of the activated receptive field. Again, the pathway that is subsequently activated to transmit this information to the area of the somatosensory cortex representing that particular location. यानी आपका जो तमाम की तमाम information है वो आपके somatosensory cortex में ही जा रही होती है कि किसने जाके stimulate किया है और कितना area है, कितना receptive field है. Intensity of the stimulus or stimulus strength distinguished by the frequency of action tensors. कितनी action tensors generate हुई हैं activated afferent neuron में और कितने number of receptors या afferent neurons जो हैं वो activate हुए हैं. कितनी action tensors generate हुई हैं, कितने activated afferent neurons हैं in number of receptors and afferent neurons activated. That is types of stimulus is modality of modality, then intensity, location and duration. Duration how much time, कितने time के लिए होगा. तमाम की तमाम information आपकी जाती है आपके cerebral cortex पे, आपके brain में. cerebral cortex का एक अगर central sulcus लें, अगर आप आज ही अपनी बुक एनाटॉमी की खोलें और आप देखें कि सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है क्या. एक सेंट्रल sulcus होता है
जिसके इन फ्रंट प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, और उसकी बिहाइंड जो है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। कोई भी रिसेप्टर कहीं भी आपका जो है वो स्टिमुलेट हो जाए, वो इंफॉर्मेशन या मैसेज आपके कहाँ जाता है, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को। This is actually the law of specific nerve energy and this is also called as Muller's law, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। ये भी आई थिंक सो आपकी गाइडन में एज सच इसका मुलर्स लॉ का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन जो पुराने एग्जामिनर्स हैं वो इसको पूछ लेते होते हैं और इसके अलावा ये दे भी सकते हैं आपको एग्जाम में। तो जब भी आप रिसेप्टर्स की बात करो कि व्हेन द नर्व पाथवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर are stimulated, the sensation evoked is that for which the receptor is specialized, no matter how or where along the pathway the activity is initiated. इसका क्या मतलब है कि अगर दरमियान से वो इनिशिएट हुआ है या कहीं नर्व फाइबर कहीं से भी इनिशिएट हुआ है, एक्टिविटी कहीं भी इनिशिएट हुई है, तो वो उस जो सेंसेशन है वो उस रिसेप्टर की होगी जो कि स्टिमुलेट एक्चुअली हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी और मुलर्स लॉ। In this type of the sensation felt is determined by the specific area of the central nervous system to which the afferent nerve fiber passes. For example, if the pain nerve fiber is stimulated by heat, cold, touch or pressure, the individual will experience only pain. ठीक है, अब ये जो है ये स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ के आपकी एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट हो रही है, वो है वो डिटेक्ट करेगा आपका ये जो है डिफरेंट मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। दिस इज योर लेबल लाइन। ईच नर्व फाइबर इज स्पेसिफिक फॉर specific type of your sensation which is going to be felt, and this is that particular sense organs are stimulated, the sensation evoked is that for which the receptor is specialized, no matter how or where this along the pathway the activity is initiated. A law of projection that is related to that of sensory cortex. This is very important. No matter where a particular sensory pathway is stimulated along its course to the cortex, the conscious sensation produced is referred to the location of the receptor. And this can, how this law of projection can be felt, कि कोई भी particular वे जो स्टिमुलेट 3 लॉज हो गए। अब एक जो हो गया लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल जो कि आपके नर्व फाइबर्स का है, कि जो आपके स्पेसिफिक नर्व फाइबर्स हैं वो जब स्टिमुलेट होंगे तो हर जो नर्व फाइबर है वो स्पेसिफिक है स्पेसिफिक मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन के लिए, दैट इज लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल। इसी तरह वो कहते हैं कि जब स्पेसिफिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो जो है कोई भी नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो, लेकिन जो है वो डिपेंड करता है कि आपका पर्टिकुलर कौन सा सेंसरी जो रिसेप्टर है वहाँ से इंफॉर्मेशन कैरिड हुई है और how या along the pathway the activity is initiated. Similarly, कोई भी particular sensory pathway जो है cortex तक जो है stimulate होगा तो जो conscious sensation है produced is referred to the location of the receptor. This is your कैसे आप एग्जाम्पल इसकी कर सकते हैं, एक कॉर्टिकल एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स ऑन कॉन्शियस पेशेंट। मीनिंग कि अगर आप जो है जो कॉन्शियस जो बंदा है कॉन्शियस बंदा है उसमें कोई कॉर्टेक्स के अंदर कोई एक्सटर्नली कोई पेन्स वगैरह लगा के न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर करें तो वो पेशेंट जो है वो डिटेक्ट करेगा उस चीज़ को। तो दिस इज योर एक्चुअली लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन लेबर लाइन प्रिंसिपल नर्व फाइबर्स को डिटरमिन करता है, मुलर्स लॉ ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी रिसेप्टर्स के लिए है, और जो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज फॉर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। प्लीज मेक क्लियर राइट नाउ because this can be asked in viva, this can be given or asked in your exams. एक एग्जाम्पल आप इसकी देते होते हैं कि फैंटम लिम्ब, एक जो था सिपाही था या एक सोल्जर था जिसकी एक लिम्ब जो थी रिमूव की गई थी, लेकिन आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ रिमूवल ऑफ लिम्ब he or she can still feel the pain from where this limb has been removed. उसकी लिम्ब जो थी रिमूव की हुई थी लेकिन फिर भी उसको जो थी
पेन फील होती थी। इस जो पेन फीलिंग है इसको कहते हैं फैंटम लिम्ब। कि उसमें क्या होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है फैंटम लिम्ब का, कि वहाँ जो सेंसरी कॉर्टेक्स है वहाँ से जब आपका जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है जब लिम्ब रिमूव कर दी तो उसका जो एरिया फीलिंग का था उस लिम्ब का, उसकी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स कर दिया। जो सेंसरी इनपुट आ रहा था आपकी बॉडी का, जो उस पेशेंट की बॉडी का जो सेंसरी इनपुट आ रहा था उसकी रीऑर्गेनाइजेशन हो चुकी होती है आफ्टर रिमूवल ऑफ सेंसरी इनपुट। और न्यू एविडेंस क्या सजेस्ट करता है कि the sensation of the phantom limb may arise from extensive remodeling of the brain region that originally handled sensations from the seared limb. There is remapping of the vacated area of the brain. Reorganization, remapping, कि वो एरिया जो खाली हो गया था उस मैसेज से जो उसको आ रहा था तो वहाँ रीमैपिंग हो जाती है और elsewhere being misinterpreted as pain arising from the missing extremity। वहाँ रीमैपिंग हो गई, रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो उसको ऐसे फील होता है कि वहीं से पेन आ रही है जहाँ के वो रिमूव हुआ। So this is your phantom limb. This phantom limb has been given in detail in Canon। अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें, नहीं तो इतना भी काफ़ी है अगर आपसे कोई एग्जाम में आ जाए। और ये दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, कि आपके रिसेप्टर से आपकी इंफॉर्मेशन जाती है सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स से। अगर वो एरिया रिमूव कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर भी बंदे को फील होता है कि उसको वहाँ जो है पेन हो रही है। तो वो क्यों पेन हो रही है, क्योंकि वो जो एरिया था जो स्टिमुलेट हो रहा था वहाँ रीऑर्गेनाइजेशन हो गई और अगेन द सिमिलर फील्ड लिम्ब में जो है फिर भी सेंसेशन फील होती है। ठीक हो गया। एंड दिस इज स्पेसिफिसिटी ऑफ द नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट ओनली वन मॉडलिटी ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड एज लेबल लाइन प्रिंसिपल। सो यू हैव नाउ स्टडीड 3 लॉज, लेबल लाइन प्रिंसिपल, Muller's law of specific energy, and your law of projection. So label line principle is going to explain specificity of fibers to transmit only one modality of sensation. Then you have studied this here, और आपने क्या पढ़ा है कि आपने जो sensory coding क्या है, sensory coding क्या थी, that is converting a receptor stimulus to a recognizable sensation is सेंसरी कोडिंग। और क्या 4 पॉइंट्स हैं इसके सेंसरी कोडिंग के, मोडेलिटी, इंटेंसिटी, लोकेशन एंड ड्यूरेशन। माइल्ड इसका आपने मोनिक बना रहे। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर का क्या निमोनिक आपने बनाया था, सीमेंट, कीमोरिसेप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, organoreceptors, nociceptors और thermoreceptors। Mild, modality, sensory coding, converting receptor stimulus to a recognizable sensation is called as sensory coding. Modality, location, intensity, duration। ठीक, इसकी पिक्चर ले लें 6-1, आई थिंक शेरवुड से लिया गया डायग्राम। सो यू कैन टेक, आप अभी से पिक्चर लेके या लिख लें अपने गाइडन के अंदर, बिकॉज यू कैन कम अक्रॉस SCQ व्हाट इज कोडिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये आ सकता है क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस UHS के एग्जाम में आया है। Then you can have law of specific nerve energy, Muller's law of specific nerve energy, law of projection, phantom limb, and label line principle. So then I am going to explain the receptor potential, that is transduction of sensory stimuli is going to be converted। sensory stimuli जो आप फील करते हो वो nerve impulses में convert हो जाता है, that is local electrical currents at nerve ending। that is called as receptor potentials। all sensory receptors have one feature in common, whatever the type of the stimulus that excite the receptors, its immediate effect is to change the membrane potential of the receptor। This change in the receptor potential is called as a receptor potential। that is whatever the type of the stimulus that excite the receptor, its immediate effect is to change the membrane electrical potential of the change in the membrane electrical potential of the receptor is called as receptor potential। तो जो भी चेंज
कोई भी स्टिमुलस आप जो कि एक्साइट करेगा रिसेप्टर को, वो क्या करता है, उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करता है। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रिसेप्टर पोटेंशियल। अब ये जो रिसेप्टर पोटेंशियल्स हैं ये कैसे जनरेट होती है, ये आपकी जनरेट होती है बाय द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कोई भी चीज जो कि चेंज प्रोड्यूस कर लाइक, और वो जनरेट क्या करती है, रिसेप्टर पोटेंशियल। मोड ऑफ एक्साइटेशन क्या हो सकती है, कोई भी मोड ऑफ एक्साइटेशन होती है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो सकती है, कोई केमिकल हो सकता है जो कि आप मेम्ब्रेन ऑफ रिसेप्टर को अप्लाई करें, कोई टेम्परेचर चेंज हो सकती है मेम्ब्रेन की, या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं such as light which is either directly or indirectly changes the receptor membrane characteristics and allows the passage of the ions through the membrane channels. So receptor potentials can be generated by the stimulus which are different and the response is the same. That is change in the membrane potential of the receptor, or change in the receptor membrane potential is called as the receptor potential. And excitation can be mechanical change, thermal change, any temperature change, any electromagnetic radiation. ये तमाम modality of sensations हैं जो कि आपके receptor को change कर रहे हैं। Example किसकी दी हुई है इन्होंने, तमाम डिफरेंट हो गए रिसेप्टर्स, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जांपल्स दी जाती है वो सीनियन कॉर्टिसल की है, क्योंकि ये विस्को इलास्टिक एक स्ट्रक्चर है, ये एनकैप्सुलेटेड है, और यहाँ आपका नर्व फाइबर है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन डॉर्सल रूट गैंग्लियन में लेके जा रहा होता है। यहाँ नोड्स ऑफ रेनवियर है एंड लेमिनल है, विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर है विच कैन बी चेंज इनटू द whenever there is mechanical pressure is going to be applied, there is deformation and current from receptor potential, there is depolarization and entry of the sodium will enter into the nerve fibers. This is going to generate more and more voltage gated sodium channels are going to be stimulated and entry of the sodium will take place, and nerve fibers A beta type, which is fastest type of the nerves which are going to take the information to the spinal cord, dorsal root, वहाँ से आपका sending pathway के थ्रू आपके brain में चली जाती है information। अब ये जो sensory receptors हैं ये nerve ending का जो part होंगे या फिर ये separate होंगे। अगर ये nerve ending का part है तो जो sensory receptors हैं efferent nerve ending, stimulus will open stimulus sensitive non-specific cationogenic sodium will goes inside, and this will allow the local current flow between the receptor endings and adjacent regions open. More and more voltage gated channels are going to open. voltage gated channels जो हैं ये आपके initial segment of axon में present है, और ये sodium entry initiate action potential in efferent nerve fibers, and this is going to propagate it to your spinal cord first and then to the central nervous system. Similarly, अगर ये कोई आपका सेपरेट रिसेप्टर सेल है तो सेपरेट रिसेप्टर सेल में स्टिमुलस अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपका सोडियम एंटर हुआ, सोडियम एंटर करके उसने कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन किया, उसने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराया, न्यूरोट्रांसमीटर ने मोर सोडियम एंटर की, मोर वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं वो एंटर किए, और सोडियम एंट्री ने जनरेट कर दी नंबर 6 पर एक्शन पोटेंशियल, जिससे कि इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाती है। I am going to repeat. In sensory receptors that are separate cells, stimulus open stimulus sensitive channels permitting net sodium entry that produces receptor potential change in the membrane potential. This local depolarization will opens voltage gated calcium channels, and calcium entry triggers exocytosis of neurotransmitter. Neurotransmitter binding will open chemically gated receptor channels and efferent nerve endings permitting net sodium entry. Voltage gated sodium channels and these sodium channels. These resultant depolarization open voltage gated sodium channels in adjacent region. Sodium entry initiate action potential in efferent nerve fibers that self-propagate to the central nervous system. So this is the procedure how the change in the membrane potential can be converted into reaches up to threshold level
एंड थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच के इट कैन जनरेट टू द एक्शन पोटेंशियल. How this signal transduction can be converted into action potential. Weak stimulus will lead to just change in the membrane potential, which is called as excitatory postsynaptic potential, like non-propagated depolarization, which is then converted into receptor potential, generator potential. When the receptor potential rises above the threshold more than 10 millivolt, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द अकम्पनिंग नर्व फाइबर. कि पहले एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर के साथ या तो अटैच नर्व फाइबर होगा या सेपरेट सेल है और उसके बाद एक नर्व फाइबर होगा. दोनों केसेस में अगर तो सिंपल चेंज इन मेम्ब्रेन, इतना वीक सा स्टिमुलस है कि उसने कोई चेंज नहीं किया, तो वो नॉन प्रोपेगेटेड ईपीएसपी होगी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होगी, जिसको के जनरेटर पोटेंशियल भी कहते हैं. लेकिन अगर जो रिसेप्टर पोटेंशियल इतनी ज़्यादा हो जाए कि थ्रेशोल्ड से ऊपर चली जाए, मोर देन 10 मिलीवोल्ट, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये आपकी जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू योर एक्शन पोटेंशियल. और एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? फर्दर इंक्रीमेंट्स इन स्टिमुलस स्ट्रेंथ रिसेप्टर पोटेंशियल. जितनी ज़्यादा और स्टिमुलस आएगा तो रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और सेंसरी नर्व फाइबर्स रिपीटेटिवली एंड मोर रिसेप्टर फील्ड एरिया जो है रिक्रूटेड. इसका क्या मतलब है कि जब और ज़्यादा जो स्टिमुलस है उसको और ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा एरिया जो है वो रिक्रूट हो जाएगा. रिक्रूट का क्या मतलब है? इस तरह कि अगर एक हल्का सा अगर अपना अप्लाई करेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि ज़्यादा एरिया को अगर आप प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा होगा और ज़्यादा रिसेप्टर फील्ड एरिया रिक्रूटेड हो जाएगा और जो है वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा जाएगी. मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल एम्पलीट्यूड हो सकता है जबकि most sensitive receptor potential is about 100 millivolt, but this level occurs only at extreme high intensity of the sensitive stimulus. 100 millivolt जो है वो तब होगा जब बहुत ज़्यादा maximally permeable to sodium ions हो और बहुत ज़्यादा जो है receptors की stimulus जो है वो उसकी voltage बहुत high हो जाए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाए उसका मोर सेंसिटिव रिसेप्टर. स्टिमुलस जो बहुत स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस है. अब क्या रिसेप्टर का रिलेशन क्या रिसेप्टर पोटेंशियल का टू एक्शन पोटेंशियल? When the receptor potential rises above the threshold for eliciting action potential in the nerve fiber, which is attached to the receptor, the more the receptor potential rises above the threshold level, the greater will be becoming the action potential frequency. कि जितनी ज़्यादा receptor potential जो है वो थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगी उतना ही ज़्यादा जो है एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. लाइक दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस डायग्राम कि अगर 100 मिली सेकेंड्स के लिए जा रही है और ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जितनी ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल जाएगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी. This diagram is going to explain the more and more receptor field area is going to be stimulated by stronger stimulus and more area is going to be recruited. ये एरिया ऑफ सेंसिटिविटी. अगर पिन है उसको हल्का सा दबाया तो पहले हल्का सा दबाया तो वीक स्टिमुलस है, थोड़ा सा ज़्यादा दबा दिया तो ज़्यादा वो रिसेप्टर फील्ड एरिया रिक्रूट हो गया और बहुत ज़्यादा उसको प्रेस किया तो बहुत ज़्यादा जो है वो strong stimulus is going to recruit more and more nerve fibers और sensitivity भी enhance हो जाएगी और आपका somatosensory cortex इसको detect कर लेगा. Sensing stimulus intensity. Intensity of the sensation is determined by amplitude of the stimulus applied to the receptor. That is, increasing sensation intensity causes frequency of action potentials nerves increases. More receptors are recruited into the receptor field. This can be explained with the help of Weber-Fechner law, which is going to describe the relation of the stimulus applied and sensation felt. Meaning कि जो आपकी sensation की intensity है और जो frequency है action potentials की वो कैसे इंक्रीज होगी कि जितने ज़्यादा रिसेप्टर जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा और जितने ज़्यादा आप रिसेप्टर्स को ज़्यादा आप उसको करेंगे रिक्रूट करेंगे रिसेप्टिव फील्ड एरिया में उतनी ज़्यादा आपको सेंसेशन फील होगी. लाइक और इंटेंसिटी जो है
वो कैसे है डिटेंड होती है कि दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेबर-फेचनर लॉ। वो क्या होता है? इंटरप्रेटेड सिग्नल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लॉग स्टिमुलस प्लस कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर किसी ने 30 ग्राम्स का वेट होल्ड किया हुआ एक हैंड में और अगर हम उस पर 1 ग्राम मजीद ऐड कर देंगे तो वो जो है पर्सन को फील नहीं होगा कि उसको जो है 1 ग्राम और ऐड किया। इसी तरह 300 ग्राम्स जो है उसने किया हुआ है तो 10 ग्राम भी ऐड कर देंगे तो 300 ग्राम्स इतना ज़्यादा है कि 10 ग्राम थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दिया तो उसको नहीं पता चलेगा। इसका क्या मतलब है कि रेशियो ऑफ द चेंज इन द स्टिमुलस स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर डिटेक्शन रिमेन्स एसेंशियली कांस्टेंट। कहाँ से कहाँ तक? about 1 to 30, which is what the logarithm principle means. logarithm stimulus plus constant कि अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसने वजन पहले से उठाया हुआ 300 ग्राम्स का या 30 ग्राम का, 30 ग्राम पर अगर 1 अपने ऐड किया तो उसको नहीं पता चलेगा। सिमिलरली 300 ग्राम्स उसको 10 ऐड करेंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कितना उसने वजन जो है वो उठाया हुआ था। और ये माइल्ड सी चेंज जो है ये अनडिटेक्टेबल रह जाएगी और कांस्टेंट उसको फीलिंग रहेगी कि उसने वजन उठाया हुआ है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू एक्सप्लेन द वेबर-फेचनर लॉ। एज सच इसका कोई एससीक्यू तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरप्रेटेड सिग्नल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लॉग इनटू स्टिमुलस प्लस कांस्टेंट। दिस इज योर वेबर-फेचनर लॉ and this is your power law. Interpreted signal strength is equal to k, which is constant, into stimulus minus k into y. कि जितनी ज़्यादा आप स्टिमुलस स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं, जब मैक्सिमम आप स्टिमुलस स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो आपकी जो इंटरप्रेटेड स्टिमुलस स्ट्रेंथ है वो जब आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तभी इंक्रीज होती है। लाइक वेरी इंटेंस स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर कॉजेज प्रोग्रेसिवली लेस एंड लेस एडिशनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। This exceedingly important principle is applicable to almost all sensory receptors. It allows the receptors to be sensitive to a very weak sensory experience and yet not reach a maximum firing rate until the sensory experience is extreme level पर होगा कि receptors जो हैं extreme range of response देते हैं, very weak to very intense। ये पहले वीक है, एक स्टिमुलेट हुआ है स्किन पर अप्लाई किया एक रॉड, फिर थोड़ा सा हुआ है तो उसने हल्का सा स्टिमुलेट किया है, ज़्यादा हुआ है तो 2 स्टिमुलेट हो गए, तीसरा हुआ है तो 3 स्टिमुलेट हो गए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल आए जब एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई करें। ठीक है, दिस इज द वाइड रेंज ऑफ देयर इज एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज योर sensing stimulus intensity. Tomorrow inshallah we will start this adaptation or sensory receptors. Tomorrow inshallah we will start. ठीक है, और आपने पढ़ के आना है कल, फिर मैं इंशाल्लाह पूछूंगी कि हमने कल क्या पढ़ा है, फिर हम अगला स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन आपने बेटे पूछना है तो पूछ लें। So today we have discussed the receptors, the classification of receptors. We have done your label line principle, law of Muller energy or law of specific energy, Muller's law. जी एक्सक्यूज मी मैम, टाइम हो गया, लेक्चर का टाइम हो गया। ओके, सर वेट कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।